Well, we see that all eyes now are currently on the Varanasi District Court as it's all set to pronounce the verdict on the Gyanvapi carbon dating plea. In fact, the Hindu petitioners have sought the carbon dating of Shivling claimed to have been found inside the Gyanvapi mosque. Remember, earlier it was claimed that a Shivling was found close to the Wazukhana in the mosque premises. It's this very claim for which carbon dating has now been sought for. Carbon dating is basically a scientific process to assign the age of an object, basically used in archaeological surveys to find fossils. In fact, on September 12th, the court had ruled that the petition of Hindu devotees in the Gyanvapi mosque case is maintainable. Now, the Muslim petitioners are challenging the maintainability of the Hindu petitioner's plea, arguing that it was not maintainable under the Places of Worship Act 1991. So, the Muslim side has taken this to a higher court, but earlier, the court had said, the district court had said that the Hindu side's plea is indeed maintainable. And then once that victory was established for the Hindu side, they further filed another plea asking for carbon dating to be carried out at that proposed as what they believe is a Shivling. They want that Shivling or a purported Shivling to be checked through carbon dating on how old it is and what's the age of that structure that they found inside the Gyanvapi mosque. Now, these are the arguments there that we are putting out to you. In fact, the Hindu woman plaintiff opposing carbon dating on one side, saying that carbon dating questions the Adi Vishweshwar Shivling. In fact, there is no question, this is indeed a Shivling. That's what one of the Hindu side petitioners claim. While on the Muslim side, they say that it's not even a Shivling, it's a Wazukhana. It's a fountain, in fact. And at the end of it, carbon dating possibly will establish the age of that structure, how long it's been standing there, how many decades or how many centuries it's been present at that spot. All of that will be established through carbon dating, but some people from the Hindu side claiming that there is no question that this is a Shivling. Why should there be any survey into this? Carbon dating is basically questioning whether this is Shivling or not. There is no question that this is indeed a Shivling. Let me cut across the advocate who speaks on the plea that's been filed at the Varanasi court. Varanasi court all set to give its verdict on whether or not carbon dating can be allowed at that spot. Let's listen in. आज जो फैसला आना है, वैज्ञानिक विधि जो भी सर्वोत्तम विधि हो, यह सही तय करेगा। हम लोग देखिए इसके विशेषज्ञ नहीं हैं, न हम लोग विशेषज्ञ कोई अधिवक्ता है और ना ही न्यायालय इसके विशेषज्ञ है। ये सही बताएगा जांच करने के बाद कि कौन सी विधि जो है अच्छी होगी, बढ़िया होगी और जिससे जांच किया जाए। भाई कितनी अहम है आज, क्या जिस कार्बन डेटिंग की चर्चा हो रही है, क्या वो सचमुच कार्बन डेटिंग है? हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं। विष्णु जी, स्वागत है आज तक में। ये बताइए कि आज क्या होने वाला है, क्या फैसला आ रहा है? ऑलरेडी हम अपनी बहस कंप्लीट कर चुके हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने आज फैसले के लिए 2 बजे लगाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो हमने एप्लीकेशन दी है कि इस मामले में जो शिवलिंग 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान बरामद हुआ है, उसकी वैज्ञानिक रूप से जांच कराई जाए। उस मांग पे माननीय न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में ये व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो वही हमारी मांग है। उसको अलग अलग तरीके से भ्रम फैलाया गया है, कार्बन डेटिंग के रूप में, जीपीआर सर्वे के रूप में। मांग ये है कि शिवलिंग कितना पुराना है इसकी एएसआई जांच करे, अलग अलग तकनीक अपना के, या जो भी तकनीक अपनाए बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए। और जब शिवलिंग की वहां पे एक्सकेवेशन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कितने नीचे तक गया है, तो जहां पे कार्बन पार्टिकल्स मिलेंगे बिना शिवलिंग को छेड़े हुए, उसकी कार्बन डेटिंग होगी। जहां पे स्टोन की आर्गन डेटिंग होनी, वहां आर्गन डेटिंग की जाएगी। जहां पे ऊपर सीमेंट का एरिया है जिसमें 1.5 सेंटीमीटर का छेद किया गया है, उस सीमेंट की डेटिंग की जाएगी कि सीमेंट कब लगाया गया, कितना पुराना है। तो इन सारे माध्यमों से ये नापा जाएगा, ये एस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये शिवलिंग कितना गहरा गया है, ये फाउंटेन है कि नहीं है, या ये शिवलिंग है, ये कितना पुराना है, इसका अर्घा है कि नहीं है। इन सारे माध्यमों से ये तय होगा कि यहाँ पे साइंटिस्ट और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहती है। इस इंटेंशन से एप्लीकेशन दायर की गई। लेकिन कार्बन डेटिंग शब्द जैसा कुछ इस्तेमाल किया है क्या आप लोगों? नहीं, हमने कार्बन डेटिंग और अदरवाइज लिखा है। मैंने यही बताया, जब एएसआई वहां पे जांच करेगी
तो बहुत सारे प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएंगी, जीपीआर सर्वे अडॉप्ट किया जाएगा, कार्बन डेटिंग किया जाएगा, और भी ऐसी तकनीकें जो हमें भी नहीं पता है, जिसके लिए एक्सपर्ट्स एएसआई हैं, वो एएसआई एक्सपर्ट्स उसको जांच करेंगे। पर हमने ये एक राइडर रखा है कि जो भी शिवलिंग की जांच की जाए उसको क्षति ना पहुंचाई जाए, उसको किसी भी तरह का डैमेज ना पहुंचाया जाए, और बिना उससे छेड़छाड़ किए हुए ये पता लगाया जाए कि शिवलिंग कितना पुराना है। लोग ये कह रहे हैं कि कार्बन वो तो एक पत्थर है, काला पत्थर है, पत्थर में कार्बन मिल नहीं सकता, तो कार्बन तो किसी भी जो लिविंग चीज है जो डेड हो चुकी है उसी में से मिलेगा, तो शिवलिंग से कैसे? मैंने वही बात बताई, मैंने वही बात एक्सप्लेन की कि हमने शिवलिंग एज सच की कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की। अगर कोई मेरी एप्लीकेशन पढ़ेगा तो बहुत बड़ा भ्रम फैलाएगा कि हमने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की है। हमने लिखा है शिवलिंग की जांच की जाएगी कितना पुराना है, किसी भी माध्यम से जिससे एएसआई सही समझती है, और जब नीचे जाएंगे, जब उसकी खुदाई होगी तो नीचे अगर कोई कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं तो उसकी कार्बन डेटिंग की जाए। तो लोगों ने कार्बन डेटिंग को इधर से पकड़ा, शिवलिंग को इधर से पकड़ा, और दोनों को जोड़ के कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मांग कार्बन डेटिंग की नहीं है, मांग यह है कि एएसआई जो एक एक्सपर्ट बॉडी है सेक्शन 22 ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, वो ये पता लगाए कि ये जो शिवलिंग 16 मई को मिला है ये कितना पुराना है, कितना डेट बैक इन टाइम करता है, और क्या ये फाउंटेन है कि ये शिवलिंग है। इस मामले में जांचो उस माध्यम से जैसे एएसआई ठीक समझे, और एएसआई इसमें एक्सपर्ट है, उस माध्यम से वो जांच करे और कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करे। कार्बन डेटिंग की कोई जिद नहीं है, ना ये बोला गया है कि कार्बन डेटिंग की जाए। बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है, मैं आपके माध्यम से दोबारा कहना चाहता हूं। लेकिन भ्रम क्यों फैलाया गया? आप ही के लोग थे वादी, जो दूसरे वादी हैं जितेंद्र सिंह बिशेन, उनकी पत्नी, वही कह रहे हैं इस बात को। अब देखिए, ये उनका अपना स्टैंड हो सकता है, मैं तो एक लॉयर हूं और अपनी बात लीगली कोर्ट में रख सकता हूं। मैं ये अश्योर करता हूं और अपने आप को ये समझता हूं कि मैंने अपनी बात कोर्ट में एक्सप्लेन करा है, सही से एक्सप्लेन किया और अपनी बात कोर्ट में रखी है, बाकी ईश्वर के हाथ में। क्या हिंदू पक्ष में भी किसी बात को लेकर के मतभेद है आपस में? मैं इस केस के सिर्फ लीगल पहलू पे बात कर रहा हूं। किसका कोई डिफरेंट स्टैंड है, उनके अपने लॉयर्स हैं, वो अपना डिफरेंट स्टैंड रख सकते हैं, उनको पूरा हक है अपनी बात रखने का, हमें पूरा हक है अपनी बात रखने का। जो मेरा स्टैंड है कि जो मैं और मेरी लीगल टीम और 4 महिलाएं, हम लोगों की जो मांग है वो मैंने आपके सामने रखी। मुस्लिम पक्ष ने भी इसमें अपनी दलीलें रखी होंगी, उनकी क्या दलील? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने इसमें एफिडेविट फाइल किया ऑब्जेक्शंस के रूप में, और उन्होंने ये कहा कि ये फाउंटेन है, ये शिवलिंग नहीं है। तो इसीलिए हमारा कोर्ट के सामने सबमिशन ये था कि एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन है, तो इसकी जांच कैसे हो सकती है? एक ही माध्यम है कि इसकी जांच एक एक्सपर्ट बॉडी कर सकती है, और इसीलिए हमने एक्सपर्ट बॉडी बैठाने की मांग की है। तो क्या जो जज जिन्होंने फैसले दिए हैं ए.के. विश्वेश, उन्हीं की अदालत में उन्हीं की अदालत में सुनवाई हुई थी और वही 2 बजे इस पे फैसला सुनाई। तो आज इस पर फैसला आ जाएगा, येस या नो? जी बिल्कुल, इसमें फैसला आ जाएगा, येस या नो। उसके बाद की क्या रेमेडी? अब देखिए, जो भी फैसला आता है, अगर फैसला हमारे पक्ष में आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम पक्ष उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करेगा। अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हम उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पर हमारा मंशा और इंटेंशन यही है कि जो शिवलिंग 16 मई को मिला है ये असर्टेन किया जाए कि ये कितना डेट बैक इन टाइम करता है। अच्छा, एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन हो सकता है? ये तो एएसआई के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कोर्ट, हमने कहा है कि एएसआई के एक्सपर्ट्स बैठाए जाएं। अब ये तो कोर्ट एएसआई एक्सपर्ट्स को जब अपॉइंट करेगी तो वो लोग सोचेंगे कि इसमें इस टीम में किसको किसको रखना है। बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे विष्णु जैन। उनका कहना है कि कोई कार्बन डेटिंग की मांग उन्होंने शिवलिंग के लिए नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट कमेटी की मांग जरूर की है ताकि ये असर्टेन किया जा सके कि वो शिवलिंग है या फवारा।